Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda. Myself Sarthak and I am going to take classes of plus 1 and plus 2 of commerce field. Today I am going to take a topic, I am going to explain a topic of goodwill which is in class plus 2, right, of accountancy subject. So it is the most important topic of our board exam. Right? It probably carries 10 to 15 marks in each year, right? So whether it would be a CBSE exam or Punjab board exam. So for more educational videos, for more recent updates, please do subscribe this channel and like and share and press the bell icon and share it to your friends as much as you can. So today I am just going to start a topic, goodwill. Basically, goodwill. Goodwill is a good name or the reputation of the business which is earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. Basically, goodwill hota kya hai? Goodwill is a type of an intangible asset, right? We know the asset, but goodwill is, we can't see goodwill. We can feel goodwill. So it is an intangible asset. It is just an asset which a proprietor or which a partner or which a businessman give to his business and build his name, right? So it is the most important part of any business, right? So basically goodwill are of two types. Types of goodwill are inherent goodwill and purchased goodwill. Inherent goodwill क्या होती है? Inherent goodwill होती है when I started my business and I do hard work in my business, and for the result of my hard work which I achieve in number of years, that is my inherent goodwill which I didn't purchase from anyone. Okay, I owe it to myself. It's my goodwill which I do hard work to my firm or my business and I am getting the fruitful results. That is my reputation, my name in the market. That is known as to be inherent goodwill. Okay, so second is purchased goodwill. Purchased goodwill, we can say purchased goodwill is a goodwill when we started a business and we purchase some other business also, right? We merge some other business also, we take over some other business. So any business, any existing business which is running and we are taking over that business, so the reputation of that business add on to my reputation. For example, basically in recent merger or acquisition, Flipkart and Myntra. Flipkart merges with Myntra, right? Both are online shopping platform, as you know. So just because to build a new market, to reduce the competition and to enhance the goodwill. So the goodwill of the Myntra, the customers of the Myntra shift to Flipkart. So Flipkart earns a goodwill which is purchased goodwill. For that goodwill, it gives a billions of amount, right, for taking over that business. So basically I just want to differ both these concepts. Inherent goodwill is some other different concept, that is what we earn from our business is an inherent goodwill, and what we get a ready-made goodwill from some other business and by taking over that business, by purchasing that business, is known as purchased goodwill. गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है हमारे बिजनेस में बहुत ही मायने रखता है. आज के टाइम पे जो किसी भी चीज को लेके हम अगर अपना कुछ बिजनेस में अगर हम अच्छा करते हैं, हमारे वर्कर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स एनहेंस्ड हैं, तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन है और वही हमारी गुडविल है, राइट? सो हमारे गुडविल की वैल्यू करने के कब हमारे में वो आते हैं इंसिडेंट्स, राइट? जब हम गुडविल, हमें अपनी गुडविल वैल्यू करनी होती है. हमें गुडविल तब वैल्यू करनी होती है जब हम अपना बिजनेस सेल या किसी का बिजनेस परचेज करना हो. सो इन प्लस 2 एग्जाम और इन एनी प्रैक्टिकल सिनेरियो वी ऑलवेज वैल्यू गुडविल व्हेन वी स्टार्ट टू टेक ओवर सम अदर बिजनेस एंड टू वैल्यू दैट इट्स गुडविल. सो हमारे बेसिक जो है टाइप्स हैं वो दो हैं, और दो टाइप्स के साथ ही हमारे जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ गुडविल है
वो काफी, जैसे पहला फीचर इनहेरेंट, पहला फीचर इट इज intangible asset, right? Second feature it would be it is fluctuating. That is, can never be कांस्टेंट. हमारी जो गुडविल है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगी. अगर हम आज हमारी मार्केट में गुड रेपुटेशन है, कल को हमारे से कुछ मिसडीड्स हो जाएं, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाएं, कुछ मार्केट में हमारे बैड प्रोडक्ट्स हों, कोई हमारे एम्प्लॉयज ने कुछ गलत कर दिया, सो हमारी गुडविल डाउन हो जाएगी. डे टू डे हमारा सिनेरियोज में हमारी गुडविल फ्लक्चुएट होगी ही होगी. सो ये हमारे ना जो बेसिक फीचर्स हैं. और जो मेथड्स होते हैं हमारे गुडविल के हमारे बेसिक मेथड्स हैं 4, राइट? 3 हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. दैट इज एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट? वी विल डिस्कस इट इन डिटेल in next video, right? So basically I just want to give you overview. Today is an introduction class of goodwill, so the students can understand the concept of goodwill and the value of goodwill and why we are studying this chapter, the importance of the goodwill. I am just today want to aware you. आज के टाइम पे जो भी है, ये आज जैसे एवरेज गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हमारे जो भी हमारा फ्यूचर एस्टिमेटेड, हमें अगर आज अपना बिजनेस सेल करना है किसी को, तो हम बिजनेस सेल करके हम अपना बिजनेस को वैल्यू करने से पहले जब हम अपनी गुडविल वैल्यू करेंगे तो हम नंबर ऑफ ईयर्स हम देखेंगे हमारे पास्ट प्रॉफिट्स को लेके कि हम फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे. सो बेसिकली वी बाय द टर्म एवरेज विद दैट n नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय n, राइट? सो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है. इट इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड इट इज नॉट अ मॉडर्न मेथड एंड इट इज नॉट यूज्ड इन टुडेज सिनेरियो. ठीक है. अब सुपर प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड इज अ मेथड which we owe to, that is it is a modern method today. Super profits formula, let me today describe you the formulas of all the 3 methods and we will do sums in our next video, right? So that you can get the overview of all the 3 methods. First method is average profit method. ओके. एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में हमें पुराने सालों के प्रॉफिट्स दिए होंगे, लाइक प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन. हम ऊपर हम करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट्स ओवर n, that is number of years. For example, we have given the profits in the sum of 3 to 4 years past profits, like first year, second year, third year and 1,000, 20,000, 30,000. 3 years profit. On the basis of 3 years, we will calculate our goodwill. So basically, average profit निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है sum of profits, that is 60,000, 60 and 3 years free. 20,000 is our
average profit. So in the sum we are given the goodwill for the 3 years, right? We have already given that calculate the goodwill of 3 years. Basically 3 years or 2 years in the given sum. We assume that we have to calculate goodwill of 3 years. So formula is value निकालेगा average profit, that is 20,000, multiplied by number of years of purchase of goodwill, that is our value of goodwill. It's the simplest method in the valuation of the goodwill. So there are many much complications for taking up this, so we will discuss in later video. So basically I am just going to give an overview of the methods. Firstly, method is this, right? We will do some further in further classes, right? So guys, I hope you understand the concept of average profit method. जब हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, सो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे दिक्कतें क्या आती हैं? हमारे जो पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं, पास्ट प्रॉफिट्स में कुछ हमारे होते हैं नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स, दैट इज नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स होते हैं will not occur in future. नॉन रेकरिंग, जो हमें पास्ट में कुछ प्रॉफिट्स हुए, नॉन रेकरिंग इनकम, वेदर इट वुड बी इनकम और एक्सपेंसेस, जो हमें पिछले सालों में हुए हैं और हमें आगे वाले टाइम पे जरूरी नहीं कि वो हो कि ना हो. सो गुडविल is basically the concept of future, right? Future, we are selling our business, we are selling our goodwill so that the purchaser will earn the benefit of it in the further years, right? So उसको अगर हमारे profits, हमारा जो base है वो ही गलत लेंगे तो कैसे बनेगा? So हमारे जो non recurring जो income होगी, जो income हमारे मान लो पिछले एक profits दिए हुए हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth and so on years. हमारे फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा प्रॉफिट हो गया, जैसे हम लगा लो कि जो हमें दोबारा नहीं होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड कहीं से हमें प्रॉफिट आया, रिलीज हुआ, राइट? हमारे जो बैड डेट्स थे वो हमारे रिकवर हो गए, जो हमारे अनएक्सपेक्टेड थे, तो उससे क्या होगा? हमारे प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर के इंक्रीज हुआ होगा. सेकंड ईयर में कुछ हमारे एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हो गए जो जिससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, और ऐसे करके. अब बेसिकली हम अगर किसी चीज का बेस ले रहे हैं अपने फ्यूचर को कैलकुलेट करने, हमें अपने फ्यूचर बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, तो हम बेस का जो प्रॉफिट है उसमें वो इनकम जो हमें फ्यूचर में कभी होगी ही नहीं, उसको हम लेस कर देंगे. सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग इनकम शुड बी माइनस फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट कंसर्न्ड ईयर, राइट? और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, अगर हमने एक्सपेंस कोई बुक किया हुआ है और वो नॉन रेकरिंग है, वो नहीं होने वाला आगे, बट हमने थर्ड ईयर में कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया जिससे हमारा प्रॉफिट उस साल कम हुआ, अगर उस साल खर्चा हुआ है, आने वाले सालों में वो खर्चा नहीं होगा, तो आने वाले सालों में हमारा जो थर्ड ईयर कुछ भी है तो इसमें हम प्लस कर देंगे थर्ड ईयर के प्रॉफिट में, जो नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंस होगा. और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे लॉस बाय फायर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम लॉस इन फायर,
these kind of expenses or these kind of income are of non-recurring. So लॉस बाय फायर हमारा हुआ हो तो हमारा एक्सपेंस था जो हमारा कभी कभी फायर जरूरी तो नहीं हर साल हो, और कभी इंसिडेंट हो गया तीसरे साल हो गया तो हम जरूरी तो नहीं कि वो आने वाले सालों में हो. सो जो एक्सपेंस थर्ड ईयर में हुआ उसमें भी हम लॉस बाय फायर प्लस कर देंगे. सो ऐसे करके हमारा थर्ड ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, जो हमें जिन प्रॉफिट्स का हमें फिर सम लेना है एडजस्टेबल, ये हो गए हमारे प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स. राइट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स लाइक मे बी हमारी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसका सम हम लेंगे, और वो जो सम होगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स, हम अपने पुराने फॉर्मूले में सम ऑफ राइट प्रॉफिट्स ओवर एन, ये जो है ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स होगा. ठीक है, हम क्योंकि हम एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम गुडविल होती है तो हम अपना फ्यूचर के बिहाफ पे आज पैसे लेंगे. जो हमारा बीत चुका वो तो बीत चुका. हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, हम गुडविल किस बेसिस पे सेल करेंगे कि हमारी बिजनेस से उसको आने वाले टाइम पे फायदा है, और आने वाले टाइम पे जो फायदा मिलेगा उसमें जो पुराने टाइम पे जो नुकसान या फायदा मिला है और वो नुकसान फायदा आगे रिपीट नहीं होगा तो उसको एडजस्ट करके हम बेच लेंगे. ऐसा तो हमारा इररेशनल हो जाएगा. ठीक है ना, ये तो एक हिसाब का इररेशनल है, और एवरेज प्रॉफिट हमेशा हमारा जो है वो इररेशनल. टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो देखते ही नहीं है. So this is, or it is the most important method which is usually in the sum, given in the sum, that is by super profit, by average profit, by annuity, you have to calculate the profit, goodwill. So basic. और कुछ expenses ऐसे होते हैं जो कभी हुए नहीं. ठीक है, कुछ हुए नहीं बट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे वो एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूसली होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और मैनेजर सैलरी वुड बी कंडक्टेड 60,000 एवरी ईयर. सो 60,000 एवरी ईयर का मींस हमें हर पिछले सालों के में से 60 माइनस करना पड़ेगा. राइट, हमें सारे माइनस करके हमें हमारा बेसिक जो एडजस्टेबल प्रॉफिट होगा उसको ही हमें यहाँ पे लेके समेशन ऐड करना है. मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, कैसा नहीं है. सो एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, एनी सॉर्ट ऑफ related query of +2 commerce, economics and business study, we are giving the link, we are giving the our email in the description box, or in the you can query in the comment box. I will reply. I will solve your problem as soon as possible. I will definitely solve your problem, right? और एवरेज प्रॉफिट पे ही ना एक और टॉपिक आता है, एक और एडजस्टमेंट होती है, वो बच्चों को समझ नहीं आती बट वो इजीएस्ट एडजस्टमेंट होती है जो प्लस माइनस हमने करना होता है, वो होता है डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन का जो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने जो अपनी डेप्रिसिएशन है
कई बार एसेट जो होता है हमने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करी होती, मतलब हम उस जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम कई बार प्रॉफिट एंड लॉस में हम किसी एसेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, बट एसेट इज हमें बैलेंस शीट वाली आइटम होती है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम अगर एसेट को अपना बुक करते हैं तो एसेट को बुक करने से अपना जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज हुआ होता है, राइट। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होता है क्योंकि हमने इनकम की साइड पे वैल्यू ऑफ एसेट डाल देते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होता है। और हम उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन नहीं, वो वैल्यू ऑफ एसेट हम माइनस करेंगे। वैल्यू ऑफ एसेट जब माइनस करेंगे तो बट हमें वैल्यू ऑफ एसेट तो माइनस करेंगे, बट हमें डेप्रिसिएशन तो उसकी P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही चार्ज करनी होगी। तो उस कंसर्न ईयर की हमें डेप्रिसिएशन जो है वो, ये जो वैल्यू ऑफ एसेट है ये, इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ होगा, तो हम इससे बढ़ा देंगे अपना प्रॉफिट। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको नेगेटिव, उसको हम माइनस कर देंगे, राइट। क्योंकि अपने जो प्रॉफिट है उससे डेप्रिसिएशन अगर हम बुक करेंगे तो वो माइनस हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमारा अगर कम हो जाएगा तो अगर किसी ने बोला 2001 में हमने वैल्यू ऑफ एसेट इज चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने वैल्यू ऑफ एसेट को चार्ज कर दिया। चार्ज मीन्स हमने वैल्यू ऑफ एसेट को हमने डाल दिया अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो हमें सही करना, रेक्टिफाई करना है, तो हम उसको पॉजिटिव करके एडजस्टेबल साल में, बट उस साल में जो वैल्यू ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन रेट नीचे दिया होगा 10% बाय WDV और बाय स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी दिया होगा, जैसे मान लो बाय WDV दिया, वैल्यू ऑफ एसेट हमें है 1 लाख का, हमने एसेट 2001 में कर ली, लेकिन 10% जो इसकी डेप्रिसिएशन होगी, मीन टू से 10,000, ये तो हमें माइनस करनी पड़ेगी ना, जो हमने माइनस नहीं करी। इसको हम वैल्यू ऑफ एसेट तो लाख तो प्लस कर देंगे, तो उस साल में जो डेप्रिसिएशन है जो हमने नहीं चार्ज करी, नीचे हमें इंफॉर्मेशन में दिया होगा, तो 10,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट। बट इसका इफेक्ट मान लो 2002 का प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होगी, और WDV के साथ है तो 1 लाख का एसेट 90,000 का बन गया। 90,000 का 2002 में हमारा 90,000 का ओपनिंग एसेट, और 90,000 पे हम 10% करके 9,000 कर, एंड सो ऑन। ओके, सो 2003 में 90,000 में 9,000 माइनस करके हम 81,000 पे 10% अगर WDV के साथ आएंगे। और बेसिकली यही एडजस्टमेंट्स है नॉन हमारे जो रैकरिंग नॉन रैकरिंग अकाउंट में। ओके, सो आज हमने डिस्कस करा एवरेज प्रॉफिट मेथड इन डिटेल। जो भी दिक्कतें होनी चाहिए वो सारी की सारी सॉल्व हो गई हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा आज की क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड का, और कैपिटलाइजेशन मेथड का। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसकी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए, गुडविल की वैल्यू ऐसे होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब इसमें होता है, इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख लिया कैसे निकालना, ठीक है। जो एक नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक मेथड होता है, जिसमें होता है कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें सब में दिया होगा, हम कैपिटल एम्प्लॉयड को जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। मीन टू से अगर सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आपको आ गया, फॉर्मूला जितना सिंपल है बट उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अब इसमें क्या, एवरेज प्रॉफिट जब निकल गया, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लग दोगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों चीजें हमें सब में 90% दी होती है। ये तो दिया ही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार नहीं दिया होता, उसका फॉर्मूला होता है, वो हम आने वाली क्लासेस में सीख लेंगे कैसे करना है। सो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा इन्फिनिटी के बेसिस पे चलता है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं होते, इसमें गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें होता है सुपर प्रॉफिट ओवर NRO। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला। मीन टू से इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया होगा। अगर मान लो आपको सम में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ना दिया हो और बोला कैलकुलेट गुडविल, सो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना चाहिए, अजम्पशंस लेने के बेटर है। हमें नीचे एक नोट लिख देना चाहिए कि हाँ भी हमें गुडविल का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया, सो वी अज्यूम दैट गुडविल इज फॉर इन्फिनिटी एंड द इन्फिनिटी मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की जरूरत नहीं। सुपर प्रॉफिट जैसे हमने निकाला है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NROR, ये दोनों दिए होते हैं। जब हमारा सुपर प्रॉफिट निकला, ये सुपर प्रॉफिट यहाँ आ गया, ऊपर NROR दिया होगा सामने। ओके, ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ये हमारे तीन जो मेजर मेथड्स थे ये हो गए हैं हमारे खत्म। तो इसके बाद हम एक छोटा सा मेथड रहता है जो है एनुटी मेथड। हम आता नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही कम चांसेस हैं उसके आने के, बट फिर भी कई बार एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट गुडविल बाय ऑल द 4 मेथड्स। So we have to learn that method also. So we will discuss that method or do sums related to goodwill chapter in our next further classes. So be in contact with us for the next classes. Okay? So guys, do subscribe this channel and share this video as much as you can, so that we will continuously upload the videos related to this subject, related to some other subjects. So stay connected, share this video as much as you can. Any sort of doubt in today's class, you can ask in comment box and I will reply as soon as possible. Thank you so much.